हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स विच आर 12 इन इंडिया में से कुछ इम्पॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स। द रेस्ट ऑफ देम विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो विच विल कम नेक्स्ट वीक। सो एज यू ऑल नो कि आपके जो प्रिलिम्स हैं उसको बहुत ही कम दिन बचे हैं, हार्डली 23 days आर लेफ्ट, right? So I hope you are preparing with full zeal, full enthusiasm, क्योंकि जो last minute effort है that can reap great results. So even if you think कि आपकी preparation slow जा रही है या आपको सब कुछ भूल रहा है, just don't lose the hope. You can still make it and crack the exam. In fact मुझे लगता है कि जो last के कुछ दिन होते हैं ना, उसमें is the right time to go full throttle, right? And now is the time. Just don't leave any stone unturned. Don't really lose hope कि आपसे नहीं होगा. Just be sure कि you will make it, you will crack it. You have put in enough hard work and just keep on going. Solve a lot of FLTs and watch a lot of videos or revise a lot of notes. Just do anything, but don't waste time in doubting yourself. Okay, so let's just start with the video. सो बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व्स में आपके पास टेरेस्ट्रियल, मेरीन या कोस्टल इकोसिस्टम कुछ भी आ सकता है. मेनली द आइडिया इज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एट द सेम टाइम इंश्योरिंग कि उसका सस्टेनेबल यूज़ हो रहा है, राइट? अब जैसे ना ये क्वेश्चन आया था, नो दिस क्वेश्चन इज नॉट अ डायरेक्टली रिलेटेड क्वेश्चन टू दिस वीडियो, बट आई जस्ट एडेड इट to give you some confidence because it's a very simple question. So which of the following is not a site for in-site method of conservation of flora? Biosphere reserves, botanical garden, national park, wildlife sanctuary. अपना आंसर सोचिए, लिखिए कमेंट्स में. I'll just maybe write it in the comments and pin it, right? But it's a very simple question. So whenever we talk about biosphere reserves, there is a certain criteria. पहला है उसमें that एक ऐसा site which must contain an effectively protected and minimally disturbed core area. ठीक है? And it should be a unit. The core area should be a part or typical of the biogeographical unit. Now India में अगर हम बात करें biogeographical unit और biogeographical zones की, तो टोटल 10 हैं and 27 biogeographical प्रोविंसेस हैं. तो जब हम एक बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, उसका जो कोर एरिया है दैट शुड बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ बायोजियोग्राफिकल यूनिट, ठीक है, एंड लार्ज इनफ टू सस्टेन वायबल पॉपुलेशंस ऑफ ऑल द ट्रॉफिक लेवल्स. ठीक है, एक तो ये क्राइटेरिया है. दूसरा है लोकल कम्युनिटीज़ की इन्वॉल्वमेंट, उनकी कोऑपरेशन, ठीक है, बिकॉज दे कैन एक्चुअली हेल्प to conserve the biodiversity in a sustainable way. Then the areas which have potential for preservation of traditional tribal or rural modes of living. ठीक है, so ये कुछ criteria हैं. Then if we okay, another question, the most important strategy for conservation of biodiversity together with traditional human life is the establishment of, again, now this is related to the previous slide, बायोस्फीयर रिजर्व्स, बॉटनिकल गार्डन्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज. आप अपना आंसर अगेन यू कैन राइट इट इन कमेंट्स, राइट? इवन इफ यू डोंट वांट टू राइट इट इन कमेंट्स, जस्ट सी कि आपका सही है कि नहीं. अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, अ बायोस्फीयर रिजर्व इज टिपिकली डिवाइडेड इनटू 3 zones. वी हैव द कोर जोन, वी हैव द बफर जोन एंड वी हैव द ट्रांजिशन जोन. कोर जोन होता है एक्सट्रीमली प्रोटेक्टेड एरिया, mainly under the Wildlife Protection Act of 1972, one which contains the wild relatives of economic species and represents the important genetic reservoirs that we are trying to conserve, right? And at the same time यहाँ पे जो human pressures है ना वो minimal होते हैं. Then we have the buffer zone which is again to protect the core zone. उसके बाद ट्रांजिशन जोन होता है जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स अलाउड होती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ दे आर अलाउड, दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड, राइट? अगर हम बफर जोन की बात करें तो वो कोर जोन को सराउंड करता है एंड द एक्टिविटीज़ आर मैनेज्ड, दे आर अलाउड, दे आर मैनेज्ड, दे आर रेगुलेटेड इन एन एरिया सो दैट वी आर एबल टू कंजर्व द कोर जोन.
ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास लिमिटेड रिक्रिएशन, टूरिज्म, फिशिंग, ग्रेजिंग हो सकता है, बट कोर एरिया को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम रिसर्च एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज दे आर टू बी इनकरेज्ड, और ह्यूमन एक्टिविटीज आर लाइकली टू कंटिन्यू इफ दे डू नॉट adversely affect the ecological diversity. So कोर जोन में तो ह्यूमन एक्टिविटीज बिल्कुल ही नहीं अलाउड, बफर में थोड़ी बहुत अलाउड है, ट्रांजिशन में दे आर कंप्लीटली अलाउड, राइट? Because and the other thing is that it is besides the outermost part, it is not delimited one. ठीक है, ये demarcated नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास सेटलमेंट्स, क्रॉपलैंड्स, बहुत कुछ आपको मिलता है। देन इंडिया एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स की अगर हम बात करें, देखो जो सबसे पहले आइडिया था बायोस्फीयर रिजर्व का, दैट वाज इनिशिएटेड बाय यूनेस्को इन 1974 अंडर द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम with the objective of obtaining international cooperation for the conservation of biosphere reserves. और जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व था दुनिया का, that was established in the year of 1979. इंडिया में a scheme called Biosphere Reserve has been implemented since 1986, जिसकी फाइनेंशियल असिस्टेंस इन दी किस फॉर्म में है, 90:10 फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्टेट्स एंड फॉर 3 हिमालयन स्टेट्स विच आर JNK, हिमाचल एंड उत्तराखंड, एंड 60:40 फॉर दी अदर स्टेट्स, राइट? जो स्टेट गवर्नमेंट्स है ना, वो मैनेजमेंट एक्शन प्लान बनाती हैं, उसके बाद दैट इज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल मैप कमेटी। देन इंडिया हैज़ अ टोटल ऑफ 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, out of which 12 form the part of World Network of Biosphere Reserves. पहला कौन सा था? नीलगिरी 1986 में, और लेटेस्ट कौन सा है? पन्ना in 2020. So we have 12 biosphere reserves which are the part of World Network of Biosphere Reserves. Now if we look at the map, you should, because directly question आ सकता है. So see, you can actually start from the north part of the country. We have cold desert in Himachal and Nanda Devi in Uttarakhand. Then you can move to the northeastern part of country. So we have Kanchenjunga in Sikkim, Dehang, Dibang in Arunachal. Assam mein we have 2, Manas and Dibru Saikova, and Meghalaya mein we have Nokrek. Then in Madhya Pradesh, exclusively we have Panna and Panchmari. Then in Madhya Pradesh and Chhattisgarh, we have Achanakmar, Amarkantak, right? Followed by Gujarat, जो कि कच्छ, गुजरात का कच्छ है, ओडिशा, सिमलीपाल, वेस्ट बंगाल, सुंदरबंस, आंध्र प्रदेश, शेषाचलम. देन तमिलनाडु और द साउथ पार्ट, वी हैव अगस्त्यामलाई, नीलगिरी एंड गल्फ ऑफ मन्नार, एंड फाइनली ग्रेट निकोबार इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. देन मैप और द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, जिसमें 12 हैं. ये अब किस कैसे कैसे, सबसे पहले जैसे नीलगिरी को दिया, लेटेस्ट पन्ना को दिया, तो उस फॉर्मेट में दे आर अरेंज्ड, ठीक है. सो नीलगिरी वॉज द फर्स्ट वन, पन्ना बीइंग द लेटेस्ट वन. अब अगर हम ना तमिलनाडु देखें, सो तमिलनाडु से वी हैव द मैक्सिमम, वी हैव अगस्त्यामला, we have Gulf of Mannar, Nilgiri, all 3 in World Network of Biosphere Reserves from Tamil Nadu. And then Madhya Pradesh also we have 3. So we have Panchmari, Panchmari is in MP only, Panna is in MP only, and Achanakmar, Amarkantak is in MP and Chhattisgarh. So these 3 states na, you have 3 biosphere reserves and all of them are part of Man and Biosphere Program. ठीक है. तो ऐसे आप चीज़ें याद करोगे तो आपको थोड़ा अच्छे से याद होनी शुरू हो जाती है. नॉर्थ ईस्ट की बात करें, सो वी हैव नॉकरेक ओनली, राइट? ओके, एंड कंचनजुंगा ऑफ कोर्स. देन पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को डिस्कस करते हैं. तो मैप में इसकी लोकेशन देख लीजिए, मध्य प्रदेश में है ये, एंड इट इज़ लोकेटेड इन दी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, वो आप मैप से देख सकते हो. एंड इट इज़ लोकेटेड इन दी विंध्यन माउंटेन रेंज, ठीक है. अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर. Now another thing is that पन्ना नेशनल, जब हम पन्ना टाइगर रिजर्व की बात करते हैं ना, पन्ना नेशनल पार्क हैज़ ऑल्सो बीन डिक्लेयर्ड एज पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है. Now apart from the whole part of Panna National Park and 3 parts of Gangao Sanctuary, ठीक है, they have been notified as critical tiger habitat, ठीक है. सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यू हैव पन्ना टाइगर रिजर्व ऑल्सो नोन एज पन्ना नेशनल पार्क and Gangao Sanctuary, they are part of critical tiger habitat, right? अब ये जो एरिया है ना, यहाँ पे मार्च 2009 में there were no tigers in पन्ना,
ठीक है, देयर वर नो टाइगर्स, ठीक है, ड्यू टू पोचिंग। वो कहते थे कि जो वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिशियल्स थे वो भी दे वर टुगेदर, दे हेल्प्ड द पोचर्स. सो व्हाट वाज देयर वाज दैट नो टाइगर्स वर लेफ्ट इन पन्ना ऑल टुगेदर. देन विद द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, अ लॉट ऑफ टाइगर्स वर ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम द एडजॉइनिंग टाइगर रिजर्व्स. एंड अभी क्या है, 50 टाइगर्स आर देयर इन पन्ना. ठीक है, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन ऑफ 2018 इज इन MP. कितने हैं, 526. ठीक है, रिवर की बात करें, सो वी हैव केन विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना. नाउ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट. ठीक है, so government of India along with government of Madhya Pradesh and UP have planned to link Ken river with Betwa river. So you will have Dhaudhan dam and you will also have another dam. ठीक है, 2 डैम्स होंगे. अब अगर हम केन और बेटवा की बात करें, so Ken is in MP and Betwa is in UP. Now both of them are tributaries of Yamuna. and जब ये लिंकेज हो जाएगी तो जो वाटर स्टार्व बुंदेलखंड रीजन है उसको पानी मिलेगा. नाउ दिस इज़ अ बिग प्रोजेक्ट. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, पन्ना टाइगर रिजर्व में कि 9000 हेक्टेयर्स एरिया जो है वो डूबना है, दैट विल बी सबमर्ज्ड, जिसमें से 5800 हेक्टेयर्स जो होगा वो पन्ना टाइगर रिजर्व का होगा. सो दैट इज़ नॉट done. So that is very important for you to know, right? So Ken Betwa is related to Panna Tiger Reserve, Panna Biosphere Reserve, whatever. Fauna की बात करें, tigers we have discussed. Caracal, ठीक है, it is a wild cat. Leopard and sloth bear. ठीक है, अब ये मैंने ना गवर्नमेंट की वेबसाइट से उठाया. तो यहाँ पे ना आपको टाइगर, you also get चीतल. This is चीतल का IUCN status is least concern. Then you get सांभर, इसका IUCN status is vulnerable. Then you also get sloth bear, जिसका IUCN status is vulnerable again. And चिंकारा least concern. ठीक है, so चिंकारा and चीतल they are least concern. सांभर and sloth bear they are vulnerable. ठीक है, इनके बारे में देख लीजिए. और टीक एंड खरदाई ट्री. खरदाई इज़ अ ट्री जो छोटी होती है. ठीक है, उसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स में दी जाती है इसकी सीड्स. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्री ऑफ दिस बायोस्फीयर रिजर्व, राइट. देन यू हैव पंचमरी. पंचमरी सतपुरा रेंज पे है. ठीक है, सो इट रन्स ईस्ट टू वेस्ट एंड द पंचमरी प्लेटो इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द एरिया ऑफ दिस बायोस्फीयर रिजर्व. अब यहाँ पे हमारे पास बोरी सैंक्चुरी, सतपुरा एंड पंचमरी सैंक्चुरी 3 है. वहाँ पे पन्ना था और गंगाओं था. ठीक है, यहाँ पे 3 है. पन्ना बायोस्फीयर इज ऑल्सो हैविंग अ टाइगर रिजर्व, दैट इज पन्ना टाइगर रिजर्व. पंचमरी इज हैविंग सतपुरा टाइगर रिजर्व. ठीक है, अब यहाँ पे ना 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स मिलते हैं. कौन से, ईस्टर्न हिमालयन एंड द वेस्टर्न घाट्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस वजह से ना इट इज़ often referred to as genetic express highway. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है पंचमरी के बारे में. अब यहाँ पे कौन सा रिवर मिलता है आपको, एक सोन विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, एंड डेनवा क्या है, इट जॉइंस तावा विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा. ठीक है, सोन एंड डेनवा. सोन इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, डेनवा इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ तावा विच इज़ फर्दर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा. उसके बाद यहाँ पे ना टीक मिलता है आपको, एंड दे ऑल्सो इंक्लूड द वेस्टर्न मोस्ट ग्रोव्स ऑफ सल. मतलब अगर सल आपको इधर ईस्टर्न पार्ट में मिल रहा है तो वेस्टर्न मोस्ट जहाँ पे मिलता है वो आपको पंचमरी में मिलता है, बिकॉज सल इज एन इम्पॉर्टेंट ट्री ऑफ ईस्टर्न इंडिया फॉरेस्ट. आई होप दिस इज क्लियर. उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, सो यू गेट बारासिंगा, यू गेट वाइल्ड बफलो एंड यू गेट रेड जंगल फोल. सो बारासिंगा का IUCN स्टेटस इज वनरेबल. बारासिंगा हमने इज ऑल्सो नोन एज स्वॉम्प डेयर. ठीक है ना, बारासिंगा इज़ अ वेरी इट इज़ अ स्टेट एनिमल ऑफ MP, राइट. तो यहाँ पे तो ये मिलेगा ही. ये क्वेश्चन भी आया था आपको प्रीलिम्स में कि बारासिंगा कहाँ मिलता है, तो उसका आंसर कान्हा था, बिकॉज MP में ही मिलता है. बाकी ऑप्शंस आवर नॉट रिलेटेड टू दिस. बट यू ऑल्सो गेट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ईस्टर्न स्वॉम्प डेयर which we have discussed in previous biosphere reserves. ठीक है, जहाँ पे हमने काजीरंगा के बारे में डिस्कस किया है.
तो वहाँ पे ईस्टर्न स्वाम्प डियर की बात की गई है, वो ज़रूर देख लेना, वो डिफरेंट है, ठीक है। वाटर बफलो का IUCN स्टेटस इज इंडेंजर्ड, ठीक है, एंड दिस जंगल फॉर लीस्ट कंसर्न नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, राइट। देन वी हैव अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिलता है। जो अचानकमर है दैट इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, इट इज़ ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व। अब ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, इट इज़ लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ हिल रेंजेस दैट इज विंध्या एंड सतपुरा मायकाल। मायकाल इज अ हिल रेंज विच कनेक्ट्स विंध्यास एंड सतपुरास, उसके ऊपर ये लोकेटेड है और उसका एक इम्पॉर्टेंट पीक है अमरकंटक, ठीक है। यहाँ पे आपको मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं एंड इट इज सोर्स ऑफ 3 मेजर रिवर्स, द नर्मदा, द सोन एंड द जोहिला। ऑल ऑफ द 3 दे राइज फ्रॉम अमरकंटक पीक, ठीक है। जो जोहिला है दैट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन, ठीक है। सो एंड सोन वी ऑल नो इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। उसके बाद यहाँ पे भी आपको ना यू गेट 4 हॉर्न्ड एंटीलोप, सैरस क्रेन, वाइट बैक्ड वल्चर, इंडियन वाइल्ड डॉग, ऑल ऑफ देम दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो इफ यू लुक एट मैप, पन्ना यहाँ पे है, पंचमरी यहाँ पे है और ये आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है, राइट। अगर हम बात करें ना 68% ऑफ दिस बायोस्फीयर रिजर्व इज इन छत्तीसगढ़, राइट। सो लाइक आई सेड ये यहाँ पे आपको मिलते हैं, जैसे कि दिस इज ढोल वाइल्ड डॉग, इसका IUCN स्टेटस इज इंडेंजर्ड, ठीक है। सैरस क्रेन का वनरेबल है और वाइट बैक्ड वल्चर का यू हैव क्रिटिकली इंडेंजर्ड, तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। देन सिमलीपाल इज लोकेटेड इन ओडिशा, इट इज़ द ईस्टर्न एंड ऑफ ईस्टर्न घाट। यहाँ पे आपके पास सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हदागढ़ एंड कुलदहिया वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी मिलते हैं। नाम किससे आया है सिमलीपाल का? सिमिल विच इज़ अ सिल्क कॉटन ट्री, दिस इज द फ्लावर एंड दिस इज द सिल्क कॉटन दैट वी गेट फ्रॉम दिस ट्री। यहाँ पे आपको सल सबसे ज़्यादा मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया ईस्टर्न फॉरेस्ट में मिलता है, ठीक है। एंड दे आर वेरी वनरेबल टू फॉरेस्ट फायर्स, राइट। लाइक यू गेट रूडी mongoose एंड यू गेट दिस रेड ब्रेस्टेड फाल्कोनेट है, ठीक है। इनका IUCN स्टेटस नहीं भी याद रहता है तो इट्स ओके, द पिक्चर्स आर एडेड ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए इनके बारे में, ठीक है। सो वी हैव सिमलीपाल एंड वी हैव सुंदरबंस, राइट। देन सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप, देखो सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप है ना, इट इज स्प्रेड ओवर 8 स्टेट्स, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। यहाँ पे जो टाइगर्स मिलते हैं ना, दे आर फ्रॉम अ कॉमन जीन पूल एंड वी हैव मोर देन 25 टाइगर रिजर्व्स हेयर, ठीक है। एंड इट हार्बर्स अबाउट 700 टाइगर्स रिप्रेजेंटिंग 35% ऑफ द कंट्रीज टाइगर पॉपुलेशन, ठीक है। और जो 9 टाइगर रिजर्व्स थे ना ओरिजिनली जब प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था, उसमें से जो 5 थे वो यहाँ से थे। अब यहाँ पे ना सिमलीपाल और पंचमरी आते हैं, तभी आई एम डिस्कसिंग दिस सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप सेपरेटली। द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज इसमें कौन सी स्टेट्स आती हैं, कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स आते हैं और कौन से टाइगर रिजर्व्स आते हैं, ब्रॉडर आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द सेंट्रल टाइगर लैंडस्केप, ओके। Then we have Sundarbans. Sundarbans is located on the delta which is formed by Ganga and Brahmaputra. इंडिया और बांग्लादेश दोनों कंट्रीज में है। 40% जो है वो इंडिया में है, 60% जो है बांग्लादेश में है। इट इज़ वास्ट कंटिग्यूअस मैंग्रोव फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ये ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट है दुनिया में विच इज़ इनहेबिटेड बाय दी टाइगर्स, ठीक है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव डेल्टा नेम्ड आफ्टर सुंदरी ट्रीज विच वर फाउंड थ्रू आउट द एरिया। लेकिन अब नहीं मिलती क्योंकि लॉगिंग हो गई और पानी की सैलिनिटी बहुत बढ़ गई है। जो सुंदरी ट्रीज़ है ना, ये सॉल्ट टॉलरेंट है। एक होता है सॉल्ट टॉलरेंट और एक होता है सॉल्ट लविंग। दीज आर नॉट सॉल्ट लविंग, दीज आर सॉल्ट टॉलरेंट। तो क्योंकि सैलिनिटी बढ़ रही है तो ये जो ट्रीज़ हैं दे आर लूजिंग आउट, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको बंगाल मॉनिटर जिसका IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, तो दीज आर द सुंदरी ट्रीज। इनमें ना बहुत फ़ायदे हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो एजिंग रोकता है, एंटी नोजिसेप्टिव होता है विच ब्लॉक्स द पेनफुल स्टिमुलाई, पेनफुल सेंसरी स्टिमुलाई, वो प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें। एंटी हाइपरग्लाइसेमिक दैट इज शुगर का लेवल ब्लड में कम करता है।
antimicrobial infections, anti-cancer. So all of these properties are of सुंदरी ट्री. ठीक है, तो बहुत मेडिसिनल वैल्यू है इनकी, लेकिन इनके नंबर्स आर डिक्रीजिंग एट अ रियली फास्ट पेस. ठीक है, सो ये हमारे पास सुंदर वंस है. Then Ken Betwa, this is a question from this video. The Ken Betwa linking project aims to transfer surplus water from Ken River to Betwa River is a major threat to, again you know the answer. Then this is from the previous 2-minute series video. It's a PYQ of 2019. Which of the following are part of Agastya Malai Biosphere Reserve? ठीक है, ये चारों ऑप्शंस हैं. अगेन वेरी सिंपल, इफ़ यू हैव सीन दैट वीडियो जिसमें हमने प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ तमिलनाडु को डिस्कस किया है. डोंट मिस आउट ऑन दीज वीडियोज. ठीक है, ये बहुत रैपिडली आपके रिविजन करवा रही हैं. यू माइट गेट अ क्वेश्चन, राइट. ओके, देन आर प्लान फॉर प्रीलिम्स 2021 जो कि इज़ इन वीक 7. सो इस वीक में यू हैव टू रिवाइज ऑल द करंट अफेयर्स रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, चाहे वो प्रोटेक्टेड एरिया से रिलेटेड है, चाहे वो इंडेंजर्ड स्पीशीज से रिलेटेड है, चाहे वो जिसमें डिफरेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स डिस्कस किए हैं, डिफरेंट टाइगर रिजर्व्स डिस्कस किए. ऑल ऑफ दैट इन बायोडाइवर्सिटी दैट यू हैव टू कवर. इट्स अ लॉट, राइट. Okay, also you can attempt the test, and in case you want our help you can enroll in our different courses which are these, right. So this was regarding today's session. अगर जो भी आपको डाउट है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं इस वीडियो में उनके आंसर ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं. थैंक यू सो मच फॉर